Hello, I'm Sonali Pawar. In this lecture, we are going to see input and output functions which are related to the character, means which are the functions used to once take single character from the user and also to display single character onto the screen. There are the three functions which are used to take character as an input. एक single character अगर आपको input करके लेना है और read करना है, there are the three functions which are used to take single character. And only one function is used to display single character onto the screen. Now this is the getChar function, getCh, getChe. These are the functions which takes only single character, and these three functions has it works differently. And putChar function, this is a single function which is used to display single character onto the screen. Now we will see what is the difference between this getChar, getChe and getCh. Means there are the three functions which is used to take single input from the user, but ये तीन जो functions है they work differently. So we are going to see what is the difference between this getChar, getCh and getChe. See, first we will see how to use the getChar function. I just written one program here, just include the stdio.h file because we are using the input output functions. Next, within this void main we will write the code. Within this opening and closing bracket we will write the code. Now I just declare one variable ch. एक वेरिएबल लिया है ch करके which has a data type char. Next one is a clear screen. It means it will clear the previous output. अगर कोई previous output वहाँ पे है display हुआ है screen पे, it will clear that output. And next one, printf enter character. This message will be displayed onto the screen so that user will get to know that I have to enter one character. मुझे एक character enter करना है, यहाँ पे user को पता चलेगा. Now उसके बाद user will enter one character. User ने एक enter character किया, तो वो क्या होता है, यूजिंग दिस getChar फंक्शन आई एम रीडिंग दैट कैरेक्टर. मैं क्या कर रही हूँ, getChar फंक्शन थ्रू वो कैरेक्टर रीड कर रही हूँ. आई एम स्टोरिंग दैट कैरेक्टर इनटू वेरिएबल ch में. So getChar function reads the character and store that character into the variable ch. So this is the way to use the getChar function. getChar लिखो opening closing, उसके बाद ये जो उसका जो आंसर है, assign that answer to some variable. So ch is a variable of type char. Now I just read the character and store into the ch, and after that I'm just printing that character using the printf. Here I just printed that character, entered character is, and just display that character. So let's execute this program. Suppose I enter the t. So entered character is t. ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है, जब when I execute the program, जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती हूँ तो एक कैरेक्टर एंटर किया मैंने, सपोज एंटर किया r, तो यहाँ पे क्या करता है, वो वेट करता है. जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करता तब तक वो नीचे वाले जो भी इंस्ट्रक्शन है इट विल नॉट एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन. सो मैंने r एंटर किया, यहाँ पे वो वेट करता है. जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते तब तक वो वेट करता है. व्हेन आई प्रेस द एंटर की, then it will execute the instructions which are followed by that getChar function. तो उसके बाद की इंस्ट्रक्शन क्या है, printf enter character is, वो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे, so that instruction will be executed. So enter character is r, it is display onto the screen. यहाँ पे देखो ये getChar function क्या करता है, यूजर एक कैरेक्टर एंटर करेगा तो वहां पे वो रुकता है. जब यूजर एंटर की प्रेस करता है उसके बाद वो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है. Now see, in case of the getCh, we will see in case of the getCh. getCh में क्या होता है, यूजर जो कैरेक्टर एंटर करता है वो डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पे. It will not display onto the screen and quickly it will go to execute the next instruction. So let's see. I will show you. यहाँ पे एंटर कैरेक्टर मैंने y एंटर किया बट इट इज नॉट डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन. एंटर कैरेक्टर के बाद उसने y मैंने टाइप किया लेकिन इट इज नॉट डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन. और वो क्विकली वो वेट नहीं करता है. अभी getChar में क्या करता है, वो वेट करता है. जब यूजर एंटर की प्रेस करता है उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैंने getCh फंक्शन यूज किया तो पहली बात इट विल नॉट डिस्प्ले दैट कैरेक्टर ऑन टू द स्क्रीन, और उस दूसरी बात क्या है, वो डायरेक्टली गो टू एग्जीक्यूट द अनदर इंस्ट्रक्शन. वो क्विकली क्या होता है, दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, वेट नहीं करता. यहाँ पे यूजर ने क्विकली
अगेन आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड शो यू। अभी एंटर कैरेक्टर में मैंने कैरेक्टर सपोज यू एंटर किया तो ये डिस्प्ले नहीं होता देखो स्क्रीन पे, और डायरेक्टली क्विकली क्या करता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, एंड विच इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन printf enter character, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट कर देता है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट कैर एंड गेट ch। गेट कैर में वो रुकता है जब यूजर एंटर की प्रेस करता है उसके बाद ही वो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। दूसरा है गेट ch। गेट ch में क्या करता है, जो यूजर एंटर करता है वो स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले होता है, एंड क्विकली इट गो टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये वेट नहीं करता है एंटर की प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज अ गेट ch। गेट ch से क्या होता है, इट डिस्प्ले द जो यूजर एंटर करता है वहां पे वो दिखता है वो उसने क्या टाइप किया, और क्विकली क्या करता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। आई विल शो यू। यहाँ पे देखो मैंने सपोज ई प्रेस किया तो ई वहां पे दिखता है, और उसके बाद क्विकली वो क्या करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो CHE में क्या होता है, whenever you enter the any character it echo onto the screen, ये स्क्रीन पे दिखता है और वो क्या करता है बाद में वेट नहीं करता है एंटर की प्रेस करने के लिए, क्विकली क्या करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। सो अगेन आई विल रिवाइज क्विकली। सी गेट कैर फंक्शन मैंने यहाँ पे डाला है। सो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यहाँ पे देखो मैंने प्रेस किया सपोज टी, तो यहाँ पे वो वेट करेगा, जब आप एंटर की प्रेस करोगे उसके बाद प्रिंटफ वाला वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। देखो एंटर कैरेक्टर इज गेट सी इज टी, उसके बाद सपोज मैंने गेट ch लिखा, तो इससे क्या होता है, जब मैं कौन सा भी कैरेक्टर प्रेस करती हूँ इट विल नॉट डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन। मैंने सपोज अभी यहाँ पे डाला डी, तो डी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, देखो एंटर कैरेक्टर के बाद डी डिस्प्ले नहीं होता, और वो क्या करता है एंटर की प्रेस करने के लिए भी नहीं वेट करता, डायरेक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो एग्जीक्यूट करने के लिए चाहता है। सो क्विकली इट विल डिस्प्ले एंटर कैरेक्टर इज डी। एंड लास्ट वन इज अ गेट CHE। इसमें क्या होता है, वो जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे और क्विकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, एंटर की प्रेस करता है जब तक यूजर उसके लिए वेट नहीं करता, डायरेक्टली गो टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सपोज आई एंटर द F, तो देखो F वो उसने क्या किया, डिस्प्ले किया स्क्रीन पे जो यूजर ने डाला है वो डिस्प्ले किया है, टाइप किया है वो, एंड इट विल डायरेक्टली गो टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वहां पे वो एंटर की प्रेस करेगा यूजर, इस तब तक वही नहीं रुकता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सिर्फ रुकता कब है, जब यू आर यूजिंग द गेट कैर। तो गेट कैर में क्या होता है, जो एंटर किया हुआ कैरेक्टर है यूजर का वो टाइप करता है, उस वक्त उसको दिखाई भी देता है स्क्रीन पे, और वो वेट करता है जब यूजर ने एंटर की प्रेस की तब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। इस गेट CHE में भी क्या होता है, जो यूजर टाइप करता है वो स्क्रीन पे दिखता है, इट इज गेट CHE मींस इको ऑन टू द स्क्रीन, स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, और लेकिन वो एंटर की प्रेस करेगा यूजर उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा नहीं होता है, क्विकली गो टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए वो चला जाता है। गेट CH में क्या होता है, जो यूजर एंटर करता है कैरेक्टर वो डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पे, और उसके बाद क्या करता है, वो यूजर ने कैरेक्टर डाला, क्विकली क्या करता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। तो गेट CH में कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पे, और वो एंटर की प्रेस करेगा यूजर तब तक नहीं रुकता, डायरेक्टली क्या करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट कैर, गेट CH एंड गेट CHE। Now we will see the putchar function. अभी putchar function जो है it is used to display the single character onto the screen. मैं क्या कर सकती हूँ, एक कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकती हूँ putchar फंक्शन थ्रू, ठीक है। अभी सी थ्रू द printf also I can display the character, printf थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू डिस्प्ले द कैरेक्टर यूजिंग द printf। यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है %c, बट फॉर द putchar वी डू नॉट नीड एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि ये फंक्शन ही है कि कैरेक्टर के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन printf फंक्शन जो है वो जनरल है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं printf। लेकिन putchar फंक्शन जो है सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। सो देयर इज अ नो नीड टू यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे %c लिखो उसके बाद ch डिस्प्ले करो, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्टली यू कैन डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन टू द स्क्रीन।
और दूसरी बात ये है हमारा एडवांटेज पुट केयर का। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे पुट केयर में हम फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स कैसे प्रिंटफ में कैसे लिखा है मैंने स्लैश एन एंटर्ड कैरेक्टर इज, उसके बाद मैंने ये मैसेज ये कैरेक्टर जो भी है वो डिस्प्ले कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे कुछ मैसेज डिस्प्ले करने का, सपोज आई रिटर्न द एंटर, ऐसा कुछ किया मैंने एंड कॉमा, then it will give you the error, compile time error, it will give you the compile time error, wrong arguments. Okay, so this is not allowed in the put char. Put char किसके लिए यूज करता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए। इट इज अ अनफॉर्मेटेड फंक्शन, ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। एंड प्रिंटफ आर अ फॉर्मेटेड फंक्शन, प्रिंटफ स्कैनफ दीज आर द फॉर्मेटेड फंक्शन। उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए, यू कैन सी दैट वीडियो। Now we will see the working of this put char function. यहाँ पे देखो ये through the printf also it will print the character, एक character print करेगा, फिर से put char function through पे वो एक print करेगा character। Just execute the program। Suppose मैंने y किया, अभी y क्या है, entered character is y डिस्प्ले किया, it is a display using the printf। और दूसरा जो y है it is used by means it is printed by the put char function से वो आउटपुट आया। so I will put this into the comment, ये कमेंट में डालती हूँ मैं। कमेंट डबल स्लैश इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट, वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यहाँ पे देखो अभी मैं प्रेस करती हूँ F and press the enter key F, means using put char I just display that character onto the screen। put char से हम एक कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। अभी ये डबल स्लैश मीन्स इट इज इन द कमेंट, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, इट विल नॉट ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ कोडिंग। ये कोडिंग का पार्ट ऐसा ट्रीट नहीं करता, ये क्या करता है, ये इट इज अ कमेंट। and for the single line comment we are using the double slash, and for the multiple line comment we are using the slash star। और जब हमारी कमेंट खत्म होती है तो वहां पे आपको करना है स्टार स्लैश, उल्टा लिखना है यहाँ पे। सो इट इज यूज्ड, दिस is used for the multi-line comment and slash slash is used for the single line comment। So this is all about the get char, get ch and get ch and also put char function। I hope you understand these functions. Thank you.